नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ. So in this particular video actually I am going to talk about the branch wise future scope for different particular branches as far as civil engineering is concerned. So stay tuned for more such videos, and if you are new to my channel don't forget to hit the subscribe button right now. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. दिस completely my personal opinion considering the current scenario and what's my predictions regarding the future. It may not match with yours, so please do let me know your thoughts in the comment section after watching this. And if you have any queries also you may please put it in the comment section. तो सबसे पहले शुरू करते हैं for example structural engineering. So basically structural engineering always has a very constant demand. Definitely it has definitely a very constant demand in the market, क्योंकि structural engineer mainly design engineer की हमेशा कदर है. And the branches which are related to it also, like structural dynamics, earthquake engineering, marine structure, offshore structure, ocean engineering, ये जो इसके सबसेट है बेसिकली एक्चुअली structural engineering के, यहाँ पे भी बहुत सारे डिमांड है. In fact, in some cases I would say the demand is really great. In fact, बाहर भी in the foreign countries also there is a great demand for this kind of branches, like marine structures and stuff like that. Structural engineering में design jobs थोड़ा ज़्यादा है इंडिया में. That is one of the things की placement तो है definitely, but package is not that great. और there is a very sad trend which is across every branch in civil engineering, that is the core package is declining constantly. I was showing you the top 3 NITs actually, the placement statistics, and if you can see over there that the placements, the percentage of the people who are getting placed, if not that, the package also, it's constantly declining. For example, मैं बता रहा हूँ NIT 3G जैसे जो NITs है जिसपे कि बहुत एकदम टॉप NITs है, इसमें परसेंटेज प्लेसमेंट तो है बहुत अच्छा खासा है. Like structure में you can see it's more than 90% people are getting placed. I mean almost 100% people are actually getting placed. But the point is, yes, placement की जो statistics है वो declining है. You have to keep in mind that particular thing. तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना हो. आगे बढ़ते और समझते about the मतलब next branch which is very much related to it, that is construction technology and management. It has definitely more a future scope than structure in India. If I talk about, if you go abroad, definitely structure also has a huge scope, like if you are going to say Dubai or like any part of the UAE, तो ये बहुत ही एक अलग लेवल का जॉब हो जाता है on that occasion. But if I talk about construction technology and management in India, it has definitely better opportunity to be actually in a managerial position, within less time or less period of years, basically because of the term management. But actually construction technology and management बहुत limited institutes में ही है. That is one of the very important thing. और उसका कट ऑफ भी हाई आता है for the obvious reason, like IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में है, दिल्ली में है, and इधर आपके NIT वारंगल सूरतकल में है. इन सब से करने का एक्चुअली मतलब है. और भी छोटे मोटे कुछ इंस्टीट्यूट में भी है, लाइक भोपाल, सूरत. इट्स ऑल्सो गुड, नॉट बैड. ओके, ये है एक्चुअली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज से योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप एक्चुअली इन केस ऑफ. बाय द वे, एक मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सर पूछते हैं कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ, MTech कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के साथ एंड समथिंग लाइक दैट, इज इट पॉसिबल टू क्रैक एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस विद दिस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको तैयारी ही करनी है, ठीक है, आपकी मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब से तैयारी है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोर जॉब्स, तभी आप इसमें जाइए. और अगर एक बैलेंस्ड आप चीज़ें चाहते हो ना, कि मुझे कोर में भी एक जगह अपना पक्का रखूं और प्रिपरेशन भी करता जाऊं, इसके पीछे 2 रीजन है. मैं बोला स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग्स. देखो, आपको पसंद है तो बिल्कुल आप जाओ. आई एम नॉट एनीवन टू स्टॉप यू, बट व्हाट आई कैन से यू दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का जो सिलेबस है एमटेक का, इफ यू सी, इट इज क्वाइट
different from what you are going to achieve in योर से प्रिपरेशन. आप प्रिपरेशन के टाइम पे जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उसके साथ बहुत अलग है ये दोनों सब्जेक्ट्स की जो सिलेबस है. सो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. एक ऐसा होता है ना, मान लो कि जैसे आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग देखो, कंपैरेटिवली प्रेशर कम है. कंपैरेटिवली आई एम सेइंग प्रेशर तो सब में ही है इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट. लेकिन उसके साथ साथ आपको एक डिटैच्ड मतलब आपको फील नहीं होगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अलग से जोन में आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. आप तैयारी भी कर रहे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे, तो रिलेट कर पाओगे आप अपने सिलेबस को, एमटेक के जो सिलेबस उसके साथ, द सिलेबस यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. स्ट्रक्चर में वो नहीं है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी नहीं है. कोर प्लेसमेंट में जाना चाहते हो तभी जाना इनमें. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इज आई वुड से वेरी बैलेंस ब्रांच. थोड़ा इसका प्रिपरेशन के साथ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है सिलेबस. सो यू कैन एटलीस्ट प्रिपेयर ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट. एंड ट्रांसपोर्टेशन एज अ ह्यूज स्कोप, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का काफ़ी सारा डिमांड है. बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहा है लाइक स्पेशली इन द रेलवे सेक्टर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ मेट्रो बोलो, इन टर्म्स ऑफ आपके जितने सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी है उसमें भी, एंड लाइक बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली ओवर देयर. तो इन सारे चीज़ों को मिला के ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस राइट नाउ टू ज्वाइन. फ्रेंकली स्पीकिंग, इफ यू डोंट लाइक स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उनमें, मैं देखता रहता हूँ लाइक whoever who has done counseling sessions with me 1:1, they kept on telling me कि मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना उतना अच्छा ही लगता था. बस लोग बोलते थे कि स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट अच्छा है इसलिए जा रहा हूँ, नहीं इसलिए मत जाओ. अगर ऐसा कुछ भी चीज़ है तो डेफिनेटली गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इट ऑल्सो हैज़ अ गुड प्लेसमेंट फॉर श्योर. रही बात, और बैलेंस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रिपरेशन भी आप इसके साथ साथ कर सकते हो और एक जॉब की गारंटी भी है ट्रांसपोर्टेशन में. अच्छा, रही बात जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, तो यस, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जो प्लेसमेंट परसेंटेज का गैप जितना कम है, ट्रांसपोर्ट से जियोटेक का गैप उतना ही ज़्यादा है. राइट. सो फ्रेंकली स्पीकिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ना है आपको, डेफिनेटली इट्स वर्थ लुकिंग फॉर इट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ टॉप IITs और एनी टॉप NITs. लाइक IITs में से टॉप 7 IITs ही मान लो, इंक्लूडिंग लाइक गुवाहाटी तक मिनिमम एक्चुअली मैं बता रहा हूँ. और इधर अगर मैं बता रहा हूँ तो लाइक त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला, कालीकट में तो जियोटेक है नहीं डायरेक्टली, एनवायरमेंटल जियो टेक्नोलॉजी है तो ठीक ठाक वो भी ऑलमोस्ट. तो अप टिल दिस एटलीस्ट, इससे नीचे बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से देखो प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा आपको, हो सकता है, बट द प्लेसमेंट परसेंटेजेस आर नॉट दैट ग्रेट. कंपनीज भी अभी उतना ज़्यादा नहीं आता है. एंड फ्यूचर स्कोप जो रिसर्च वाला पर्सपेक्टिव है ना, वो भी थोड़ा कम ही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के मामले में कंपेयर टू द अदर ब्रांचेस. If you really are inclined towards research and stuff, the best branch currently is environmental engineering, which is the best branch. Why I'm saying you, it's going to prepare you for government jobs also. Government job की भी तैयारी कर सकते हो. दूसरी बात यह है कि आप environmental engineering से अगर हो तो अभी अलग से नोटिफिकेशन भी आने लगा है. आप देखिए ONGC में, DRDO में, कोल इंडिया में स्टाफ, जहाँ पे environmental engineering की ही मतलब मास्टर्स लोग चाहिए उनको. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये चीज़ भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है. और फ्यूचर स्कोप अगर आप रिसर्च के बारे में बात करो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट इन करंटली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. अगर आप फ्यूचर में कभी आना भी चाहते हैं तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आई वुड से इट्स गुड, बट देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कोर पैकेजेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कोर कंपनीज ऑल्सो भी बढ़ रहा है. दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी जिसके कोर पैकेजेस, कोर प्लेसमेंट्स बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, विच इज, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ डूइंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इफ यू आर डूइंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी IIT और एनी NIT. टॉप जो है उसी से करने का कोई लॉजिक है, बाकी से करने का उतना कुछ लॉजिक बनता नहीं है एक्चुअली. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बारे में बात करूं तो इट इज वर्थ डूइंग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द टॉप NITs ओनली इफ यू रियली आर कंसर्न अबाउट प्लेसमेंट. अगर आपको रिसर्च की तरफ जाना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम
एनी पर्टिकुलर ब्रांच। रही बात अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के बारे में बात करूं, देखो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की जो पैकेजेस वगैरह है वो आप देख रहे हो, जो कोर पैकेज है वो 4-4.5 लाख, कभी कभी तो 3-3.5 लाख भी आ जाता है फॉर एनआईटीज। मतलब 4-4.5 मान के चल सकते हो आप कोर में, विच इज नॉट दैट ग्रेट। बट इन नॉन कोर तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अगर आप जा रहे हो, आइदर तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या फिर आप नॉन कोर की तैयारी करो अच्छे से, एकदम तगड़ा वाला शुरू से। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि कोर में बहुत कुछ भयंकर प्लेसमेंट आपको मिलेगा नहीं। ओके, एंड द परसेंटेज प्लेसमेंट इज ऑल्सो द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द थिंग। नाउ कमिंग टू द अदर इंटरडिसिप्लिनरी टाइप ऑफ ब्रांचेस लाइक remote sensing and GIS, like geoinformatics type of branches, इस टाइप ऑफ जो ब्रांचेस है, तो दीज आर ऑल्सो इमर्जिंग ब्रांचेस, बट इसमें भी नॉन कोर की प्लेसमेंट्स थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द कोर प्लेसमेंट्स बेसिकली, क्योंकि रिमोट सेंसिंग जीआईएस के जो कोर प्लेसमेंट है वो चला जाता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वाला जो लोग है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक्चुअली ये चला जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग को ऑल्दो हमारे सर्वेइंग में चैप्टर एक रहता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सॉरी GIS एंड रिमोट सेंसिंग, बट वी एंड अप डूइंग जॉब्स लाइक product manager or any supervision job, something like that. But still, at least you are going to get job if you are doing it from any top NITs or IITs. like आप IIT कानपुर से करो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर NIT वारंगल से करो, सूरतकल से करो, तो कुछ मतलब बनता है उसका। बाकी सब जगह से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है। और इसके सिवा भी और भी काफ़ी सारे नए नए इमर्जिंग ब्रांचेस है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, विच इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द टॉप NITs बहुत ही अच्छा है। मतलब टॉप IITs से अगर आप कर रहे हो तो लाइक कानपुर में है ये, एज फार एज आई रिमेंबर। गुवाहाटी में भी है, बट कानपुर इज ऑब्वियसली बेटर। एंड दिल्ली में भी, दिल्ली में तो नहीं था, खड़गपुर में आई गेस है इसका infrastructure, so it's very good branch no doubt. And earth science, urban science, ये सब जो departments है, these are also some of, I would say, some kind of emerging branches. placement यहाँ पे non core ही mostly मिलता है अगर आप top IIT से कर रहे हो तो, और ये सब branches top IITs में ही है, बाकी जगह में है भी नहीं। तो ये सब में अगर जा रहे हो तो either तो आप अपने आप को PhD के लिए तैयारी करो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए तैयारी करो, या फिर आप नॉन कोर के लिए तैयारी करो ये सब ब्रांचेस पे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपको कोर एकदम जॉब चाहिए विद अ वेरी हाई पैकेज, गो फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड जो ब्रांचेस है, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, दैट अप टू दैट एक्चुअली देयर इज नो पॉइंट गोइंग बियॉन्ड दैट। सो दैट्स द हार्श रियलिटी। नाउ you are going to decide your future well, but other branches से core placement बढ़िया पैकेज चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बढ़िया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या कोर पैकेज 8-9 LPA नहीं मिलता है, मिल सकता है, बट डिपेंड्स वेयर यू आर डूइंग इट फ्रॉम। अगर आप IIT बॉम्बे से कर रहे हो बिल्कुल मिल सकता है। आई हैव शोन यू एक्चुअली वन ऑफ द पर्सन्स हु हैड कम टू माई चैनल हु इज करेंटली एन एग्जीक्यूटिव ऑफ गोदरेज, उनका इंटरव्यू भी है। मेरे इंटरव्यू सीरीज एक है पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, वो ज़रूर आप जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है और भी लोगों को बुलाऊंगा वहाँ पे, टू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द प्लेसमेंट सिनेरियोज करेंटली फॉर कोर एंड नॉन कोर। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उनके पैकेजेस वगैरह है, दैट्स क्वाइट हैंडसम। इट्स 8.5 LPA स्टफ पैकेजेस दे हैव गॉट, more than 8.5 LPA actually, which is excellent in terms of environmental engineering core package. स्ट्रक्चर में भी कई जगह में नहीं मिलता इतना पैकेज, बट द पॉइंट इज शी हैज डन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एमटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। दैट्स द मेन इशू। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये चीज़ है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर आपको रिसर्च में जाना, अगेन इज द बेस्ट ब्रांच एज आई हैव टोल्ड यू। तो अगर मैं प्लेसमेंट के ऑर्डर में सजाऊं तो मैं सजा दिया, और अगर मैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में सजाऊं तो द बेस्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फॉलोड बाय आई वुड से वाटर रिसोर्स भी आसपास ही है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वाटर रिसोर्स। आफ्टर दैट आई वुड से वाटर रिसोर्स के पहले आई वुड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि वो काफ़ी इनोवेटिव टाइप अभी चीज़ें उसमें चल रहा है, बहुत सारे फंडिंग आ रही प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी गुड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद अर्थ साइंस, वाटर रिसोर्स, ये सब चीज़ें आ रहे हैं। आफ्टर दैट गोइंग फॉर स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छा है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जियोटेक एंड स्टफ लाइक दैट. ये है मोटा मोटी मेरा एनालिसिस. आपका क्या कहना है? What is your thought about the different branches? What's your opinion? What's your thought? Please do let me know in the comment section. Don't forget to subscribe to the channel and join my Telegram channel, whose link is given in the description in the first pinned comment. Also, the Instagram link is given. Follow me on Instagram for daily updates. Telegram channel जब ज्वाइन कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना. Thank you guys. Bye. Take care. I'm going to meet all of you people in the next video. Till then, stay safe. Take care.